First day of this year. How was it? Anything special? Any special dish cooked by you? Any special thing? अच्छा एक काम करते हैं. Today, as I thought yesterday, but I was busy in my class actually. It was going on. तो वो खत्म लेट हुई थी कल और इसलिए फिर मैंने क्लास नहीं लिया था. So today, we will be discussing about the planning for New Year. I will tell you my resolutions, what I have decided for myself. When I was very young, especially when I was in my teenage, so I used to write my resolutions, and many resolutions I would complete also, and some resolutions, of course, I used to carry forward. But now I don't write resolutions, many resolutions actually. I just write one or two major resolutions in my life, and I try to complete it. Last year I wrote a resolution about my two resolutions were there. One is still remaining, but other one is I completed. I am just going to complete this course of mine, which I'm doing now. That was my first resolution last year. One resolution was also there that was little about buying some property, purchasing some. So it could not be done, but hopefully next year it would be. So these were there. And why we should make resolutions? क्यों ये संकल्प? The best part about this is that we get some target goal in that life, the particular year. It is said that people say that I want to become an engineer, I want to become teacher. Now I have become that. I have reached that goal what I decided in my school days and college days, and I have achieved it. Now what is next resolution? What is next planning? Correct? So every year these small resolutions give us short-term goals to achieve the long-term goal, right? Long-term goal can be any, but short-term goals are called the resolutions actually. मुझे ऐसा लगता है that everybody should make a resolution in life, or every year one or two resolutions. The major resolutions should be there. I will go to gym, I will start walk in the morning, or I will reduce my sugar consumption, I will gain some weight or I will reduce some weight, I will be more on time. Yes, these small resolutions are always there, right? Especially procrastination. Procrastination is the word which is called delaying the things. So somewhere I feel that I have that. I sometimes not getting into the mood, so I delay very major works also, because it is my, I don't know, it is my nature or my mood. If I am not in my mood, I don't, if I'm not feeling like working on that particular, I don't do that. And I do it on deadline only, and I finish it also. That is the good thing, that I can work in pressure also. And I work in pressure nicely actually. But the thing is that I just want to say to myself, I want to stop doing it, because I want to make my mood every day as per the work, right? Sometimes, like, I am a very planned person. I plan things like I would do this, do this, do this, and do this. But sometimes when I'm not in the mood, I skip some of the other work. So we can make some things like that, not delaying the things. हम सब time पर चलेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा. Make such resolutions, but make the other resolution also, which is really important in life. वो आप लोग कर सकते हो. तो आज हम लोग है ना resolutions के बारे में तो बात करेंगे ही. You will also share your resolution with me. What is your resolution? But first of all, मैं थोड़ा सा grammar पढ़ाती हूँ आज, जैसे मैंने कल पढ़ाने के लिए बोला था, तो आज उसे continue करूंगी. And within 2-3 classes, we will be finishing perfect and perfect continuous tenses also, क्योंकि simple तो हम लोग आज कर ही रहे हैं. Future
पास्ट पिछली बार हो गया था, प्रेजेंट पहले ही हो गया था, कंटिन्यूअस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और विद इन 2-3 क्लासेस लाइक वी विल ऑल्सो बी फिनिशिंग दिस बैच, हम इस बैच को खत्म कर देंगे। एंड आप लोगों के पास में फिर नेक्स्ट चॉइस रहेगी, दैट विल बी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, सो आफ्टर अ गैप, आफ्टर अ डे गैप आप इंटरमीडिएट भी ज्वाइन कर सकते हैं। द टाइमिंग वुड बी 8 to 9 ओनली, यही टाइम रहेगा, ठीक है। और 8 to 9 विल बी योर इंटरमीडिएट टाइमिंग। सो डेट विल बी टोल्ड टू यू, बता दी जाएगी। पहले से रखा हुआ था, लेकिन आई वुड लाइक टू गिव यू अ डे ब्रेक। आप एक दिन के ब्रेक के बाद वी विल बी डूइंग इट, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, आज तो कर लेते हैं इसको हम लोग कंप्लीट, उसके बाद फिर हम बात करेंगे about other things also, about your resolutions, about your next batch, about the content of next batch, everything we'll be discussing in a day, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर टेंस इज अबाउट 4 फ्यूचर्स। पहला होता है सिंपल फ्यूचर, जो भी काम हम करेंगे that is one future. The other future is about continuous, जो हम कर चुके हैं, हम कर रहे होंगे। दोनों का डिफरेंस है, एक काम जो होगा, दूसरा काम जो हो रहा होगा, मतलब थोड़ा सा श्योरिटी ज्यादा है उसकी कि वो हो रहा होगा, that is the thing, okay. And then थर्ड फ्यूचर होता है, that is about कोई भी काम हो चुका होगा, कंप्लीट हो गया होगा, that comes in perfect tense as the work says. परफेक्ट का मतलब ही होता है काम का पूरा होना, है ना। और फिर बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसमें हम फ्यूचर में बात करेंगे कोई भी काम एक पर्टिकुलर समय से चल रहा है, चल रहा था, एंड लकीली भी चल रहा होगा वाली फीलिंग भी उसके अंदर आती है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल की, क्योंकि हमने कंटिन्यूअस पहले कर लिया था, जिसका मतलब है कोई भी काम चल रहा होगा। जैसे मैं कल क्लास ले रही होंगी या हम पढ़ रहे होंगे, ये काम एक पर्टिकुलर समय में या फ्यूचर में हो रहा होगा। लेकिन अगर कोई काम प्लानिंग में है, मतलब होगा, तो फिर वो होगा मतलब हमें नहीं पता कि वो चल रहा होगा, बट हमने वो फ्यूचर की प्लानिंग कर ली है। वो कहीं ना कहीं 70, 80, 90% जो फ्यूचर होता है हमारा, जो प्रिडिक्ट होता है, प्रिडिक्ट मतलब हमें संभावना होती है, कुछ ऐसा अनुमान भी होता है, तो वो चीज वहां पर आती है। तो सबसे पहले आज हम प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे, जो कि प्रेजेंट सिंपल का ही पार्ट होता है। प्रेजेंट में अगर कोई चीज होती है तो वो प्रेजेंट सिंपल हो गई, है ना। लेकिन अगर कोई चीज होगी तो वो फ्यूचर सिंपल है। तो सिंपल के 3 टाइप्स होते हैं, वन इज प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हम ज्यादातर बात कर रहे होते हैं, वी टॉक अबाउट एनी प्रिडिक्ट एक्शन। प्रिडिक्ट मतलब होता है थोड़ी सी भविष्य के बारे में कुछ कह देना, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन, इसको हम हिंदी में भविष्यवाणी भी कहते हैं, या भविष्य के बारे में कुछ अनुमान लगा देना, ठीक है, प्रिडिक्शन। We also have a forecasting. Forecasting and prediction एक जैसे वर्ड होते हैं। Forecasting exactly भविष्यवाणी को ही कहा जाता है, और इसको कहते हैं भविष्यवाणी, भविष्य के बारे में कुछ कह देना, कुछ बता देना कि भाई ऐसा होगा, ठीक है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगा लेना, ठीक है। तो फोरकास्टिंग हमने सुना होगा, वेदर फोरकास्टिंग भी की जाती है, समय वेदर की भविष्यवाणी जो की जाती है। देन वी हैव, आपको याद होगा इसमें अपना महाभारत काल में जब भविष्यवाणी की गई थी, फोरकास्टिंग की गई थी कि कृष्णा जो है वो कंस का हत्यारा बनेगा, तो ये कहीं ना कहीं एक भविष्यवाणी कर दी गई थी। उसे भी फोरकास्टिंग ही कहा जाता था, आकाशवाणी, है ना, फोरकास्टिंग। लेकिन ये अभी देखा जाए तो कुछ चीजें हैं जो हम बस कह देते हैं भविष्य के बारे में, तो फोरकास्टिंग कर दी। कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं, लेवल देखते हैं, भाई काम हो रहा है तो इस पर्टिकुलर समय तक भाई हो सकता है, अनुमान लगा देते हैं क्या हो जाएगा, तो प्रिडिक्शन हो गया। फिर फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग,
फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग हो, भाई ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। जब हम ऑन पेपर भी कोई प्लानिंग करते हैं, मान लीजिए घूमने जा रहे हैं तो पूरी प्लानिंग करके रखते हैं, कोई इवेंट अरेंज कर रहे हैं उसकी कोई प्लानिंग करके रखते हैं, कुछ भी ऐसा है जो हमें लगता है, कोई ट्रैवलिंग है, कुछ भी है जिसकी हमने प्लानिंग कर ली है और हमें पता है कि हम ये करेंगे, तो वो करेंगे वाली चीजें भी हमारी इसी के अंदर आती हैं। प्लानिंग वाली जो चीजें होती हैं वो भी इसी के अंदर आती है। तो फ्यूचर में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ हमारा फ्यूचर सिंपल के अंदर आता है। हिंदी में कहते हैं होगा, होगा, कोई भी काम होगा, दैट इज वो गा गी गे ऐसा कहा जाता है कि वो फ्यूचर होता है, अगर आप हिंदी से ट्रांसलेशन करते हैं कभी तो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। सब्जेक्ट के बाद वी जनरली यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके पहले हम लगाते हैं विल और शैल। शैल आई और वी के साथ लगता है तो लिखते हैं उसको, हम चाहें तो विल भी लगा सकते हैं, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है। विल और शैल इसकी इंडिकेशन होता है कि द सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर, that is the indication of future, right? And first form हमेशा will और shall क्योंकि helping verbs हैं, और इनके बाद हमेशा first form आती है। इनके बाद will और shall के बाद डायरेक्ट हमेशा first form आती है। अगर यहाँ बीच में will और shall के बाद be लगा देंगे तो ing फॉर्म आएगी। will और shall के बाद have लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म आएगी। have been लगा देंगे, have और been लगा देंगे तो ing फॉर्म फिर से आएगी, लेकिन टेंसेस बदलते जाते हैं। अगर will और shall के बाद फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, will और shall के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ध्यान रखिएगा कि वो सिंपल फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन अगर will और shall के बाद में मान लीजिए सब्जेक्ट है, उसके बाद में मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता रही हूँ, विल और शैल के बाद में अगर बी है तो फिर हम बी के बाद तो भैया आईएनजी लगाते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं क्योंकि बी ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ये टेंस हमारा चेंज होके कंटिन्यूअस बन जाता है, हमने इसको पढ़ा हुआ भी है, राइट, है ना। लेकिन अगर हमारा जो विल और शैल है इसके बाद में हमें हैव मिल जाए, हमने विल और शैल लिखा, जस्ट अ सेकेंड, हमने विल और शैल लिखा, उसके बाद हमने हैव लगाया, तो हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो अब ये परफेक्ट टेंस बन गया है ना। परफेक्ट फ्यूचर का है लेकिन परफेक्ट टेंस है। और अगर हमने सब्जेक्ट के बाद हमने विल लगाया या हमने शैल लगाया आई और वी के हिसाब से, और हमने हैव बीन लगा दिया, तो हैव बीन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि बी की कोई भी फॉर्म लगा दो, बी की कोई भी फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, अनदर टेंस इज देयर। जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाऊंगी ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको फ्यूचर के 4 अलग अलग ऑप्शंस बता रही हूँ जो विल से ही बनते हैं। तो आप देखोगे ना कि विल ही है पूरे फ्यूचर में, सारे 4 फ्यूचर टेंसेस होते हैं टाइप्स के हिसाब से, उनमें विल ही है, शैल ही है, बस वो वर्ब फॉर्म्स चेंज होते हैं और इसीलिए वो टेंस टाइप भी चेंज होते हैं। विल और शैल के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म हमेशा फ्यूचर सिंपल है। विल और शैल के बाद बी एंड आईएनजी हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और हैव प्लस थर्ड फॉर्म उसी विल और शैल के बाद में परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस की पहचान ही होती है हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और विल और शैल के बाद में अगर बीन है, बीच में हैव लगा हुआ है, इनके साथ हैज नहीं आता है, आप जानते हैं, क्योंकि विल और शैल के बाद हमेशा बेस वर्ब आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हैव है, उसके बीच में बीन लगा हुआ है, और बीन, बी, इज़ेमार, वॉज वर, अगर ये लिखा हुआ है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म का आना जरूरी है, वो लग गया है ना। वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस एंड फॉर भी लगाते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। तो इस तरह से वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कंटिन्यूअस से। अभी जो मैटर ऑफ द टॉक है वो है हमारा विल एंड शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म।
इसका मतलब यही है कि विल एंड शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल है। विल और शैल सभी फ्यूचर में आता है, लेकिन उसके बाद लगाने वाली वर्ब्स जो हैं वो चेंज होती हैं, चाहे फिर वो एक्स्ट्रा वर्ब्स हो या मेन वर्ब्स हो। इस तरह से हम डिफरेंट फ्यूचर्स बना सकते हैं। अभी फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है, तो प्रिडिक्शन अनुमान लगाना, पॉसिबिलिटी कहते हैं जिसको। फोरकास्टिंग कोई भविष्य के बारे में कुछ कहना, कोई चीज बताना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर। एंड प्लानिंग फ्यूचर के लिए करना, कोई भी प्लान कर लिया, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसा होगा, ये सारी चीजें जो है ना वो हमारी फ्यूचर के अंदर ही आती हैं। हिंदी में कहते हैं कोई भी काम होगा, होगी, कुछ भी होगी, कुछ होगी, ऐसे इस तरह से जो दूसरे जो सब्जेक्ट के हिसाब से हिंदी चेंज होती है, पर वो गा जरूर मिलेगा आपको वहां पर। ये हिंदी हो गई इसकी, ठीक है। अगर मैं इसी के बारे में बात ज्यादा करूं, किसके बारे में, फ्यूचर सिंपल के बारे में, सिंपल सेंटेंस है आई विल डू सम शॉपिंग टुमारो। मैं कोशिश करूंगी टाइम लगाऊं, नहीं भी लगाऊं तो भी आई विल बता रहा है कि भाई फ्यूचर में ही होगा, कभी भी हो, मैंने टाइम बता दिया है कि कल होगा, ठीक है। आई विल डू सम शॉपिंग टुमारो, इसका नेगेटिव बनाना हो तो भी बना सकते हैं। आई वोंट डू, थोड़ा शॉर्ट कर रही हूं मैं, आप विल नॉट भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि हम विल नॉट पहले पढ़ चुके हैं तो मेरे लिए वोंट लिखना ज्यादा सही है, क्योंकि आप भी जानते हैं इस पर्सन को। वोंट का मतलब विल नॉट होता है। आप सोच रहे हो क्या मैं यहाँ शेल लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ, यस यू कैन यूज, क्योंकि आई है तो शैल भी लग जाएगा, वी है तो शैल भी चलता है, क्योंकि विल हम कॉमनली यूज करते हैं तो फिर मैं लगा देती हूँ, है ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाने के लिए शैल भी ले सकते हैं, हम चाहे तो विल भी ले सकते हैं। क्वेश्चन दोनों से बनेंगे। विल आई डू सम शॉपिंग, पहले हम शैल आई डू सम शॉपिंग ही कहते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम विल से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये परमिशन शुरुआत हो गई है इस चीज की, तो हम लिखते हैं will I do some shopping tomorrow और shall I do some shopping tomorrow, दोनों सही है। पहले ऐसा होता था क्वेश्चन हमेशा शैल से बनाइए, आई और वी के, ऐसा एकदम एक है ना, एक टाइप का फोर्स था वहां पे, एक नेसेसिटी थी, है ना। लेकिन अब ऐसा है कि हमें विल से, विल आई से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, विल वी से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो हम दोनों यूज कर सकते हैं। मैं दोनों लिखती भी हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। कोई ये ना बोले कि गलत है या सही है, या आधा गलत है आधा सही है, नहीं, दोनों सही है और मैं दोनों लिखती हूँ, ठीक है। वोंट या शैंट, जी हाँ, शैल नॉट का शैंट होता है तो हो जाएगा वोंट आई डू सम शॉपिंग टुमारो। ये इंटेरोनेगेटिव है, क्वेश्चन पूछकर और थोड़ा सा कंफर्मेशन लिया जा रहा है, क्या मैं कल शॉपिंग नहीं करूंगी, लाइक दैट, है ना। तो शैंट भी हो सकता है, शैंट आई डू सम शॉपिंग टुमारो, इट इज अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन, क्वेश्चन पूछकर, है ना। तो जो इंटेरोगेटिव होता है वो सिंपल क्वेश्चन होता है, पूछ रहे हैं यस और नो में आंसर आएगा मेरे पास में। जो ये इंटेरोनेगेटिव होता है ये हमेशा कंफर्मेशन के लिए होता है, क्या ऐसा नहीं होगा, ऐसा, है ना। तो इस तरह से हम 4 सेंटेंसेस फ्यूचर के साथ बना सकते हैं। ये तो सिंपल फ्यूचर है। आपको पता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर को बताने के 2 और तरीके होते हैं, मैं बताती हूँ, जो बिना विल और शैल के लगाए जा सकते हैं। बताती हूँ आपको 2 कौन से तरीके हैं। इसका एक तरीका होता है अबाउट टू के साथ में। अबाउट टू एक सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल वर्ब है, जिसके बाद में हम अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि मॉडल वर्ब कहता है। आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब मॉडल के बाद एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। तो एक तो है अबाउट टू, दूसरा जो पर्सन है जो फ्यूचर बताता है वो है गोइंग टू। आप सोच रहे हैं गोइंग टू का मतलब तो जाना भी होता है, हाँ होता है ना, लेकिन उसके फॉर्म्स होते हैं, उसके फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसके। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग, ठीक है। लेकिन ये तो पूरा गोइंग टू अलग से है, इसका कोई फॉर्म नहीं है, गोइंग टू ही है, ठीक है। तो गोइंग टू जो है इस, ये भी सेमी मॉडल है, आपको बताऊंगी क्या है।
इनके पहले है ना हमेशा हम बी वर्ब लगाते हैं, कोई भी बी वर्ब लग जाती है। बी वर्ब से मेरा मतलब है प्रेजेंट की बी वर्ब, इजएमआर लगानी ही पड़ती है, या तो पास्ट की होगा सेंटेंस तो पास्ट की बी वर्ब, was and were, ठीक है। इसके साथ भी यही होता है, सेम, वी कांट डू एनीथिंग इन दैट, ठीक है। तो ये तो फिर थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, ये ऐसे मॉडल्स हैं जो हमें फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। और एक का मीनिंग होता है जस्ट हैपनिंग, कोई भी काम बस थोड़ा होने ही वाला है, जस्ट हैपनिंग एक्शन, होने ही वाला है, इतना है, इतना स्पेसिफिक है कि होने ही वाला है, ठीक है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब गोइंग टू का मतलब होता है प्लानिंग टू, प्लानिंग टू, है ना। प्लानिंग टू का एग्जैक्ट मीनिंग है होने वाला है, मतलब अभी नहीं होने वाला है, लेकिन कभी ना कभी हमने प्लान कर लिया है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन जब आप बोलते हो अबाउट टू, इसका मतलब है मैं बोल रही हूँ और बोलते ही बोलते कुछ सेकंड्स में होने ही वाला है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि अरे किसी का कॉल आ गया, अरे यार मैं बस तुम्हें कॉल, आप उसे कॉल ही करने वाले थे, आप उसे कॉल करने ही वाले थे कि उसका खुद ही कॉल आ गया, तो हम ऐसे ही बोलते हैं I was just about to call you, मतलब मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, है ना। ये फ्यूचर का वो पास्ट वाला फॉर्म है जो होना ही था पर नहीं हुआ, लाइक दैट, है ना। I was just about to call you, ठीक है। लेकिन जब आप कहोगे कि मान लीजिए आपने कहा कि हाँ मैं सोच तो रही थी तुम्हें कॉल करूंगी, मैंने प्लान भी कर लिया था कि मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद करती हूँ, है ना। तो आप ये अभी नहीं करने वाले थे, आपने सोच लिया था कि मैं करूंगी, मतलब मैं करने वाली थी, बट उसका जो टाइम था वो जस्ट हैपनिंग वाला नहीं था, प्लानिंग ही थी बस, है ना। सो आई वॉज गोइंग टू कॉल यू, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस हमें क्या बता रहे हैं, पास्ट वाला फ्यूचर के मैं भाई करने वाली थी या करनी ही वाली थी कि तुमने कर दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हम इसका फ्यूचर भी बना सकते हैं, इसका फ्यूचर लेकिन हमेशा प्रेजेंट में बनता है, इसके साथ विल और शैल नहीं लगता है। गोइंग टू और अबाउट टू के साथ विल और शैल नहीं लगाते हैं, न बी विल बी शैल भी लगाएंगे ना विल शैल लगाते हैं। इसके साथ डायरेक्टली सेंटेंस ऐसे है कि पता है अगले महीने ना मैं एक कार खरीदने वाली हूँ, हम लोगों की प्लानिंग हो गई है तो कार खरीदने वाली हूँ, इसका मतलब मैं फिक्स्ड कर चुकी हूँ, बस खरीदने वाली हूँ तो खरीदना बाकी रह गया है। सो आई एम गोइंग टू बाय अ कार, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाय अ कार, इसका मतलब है मैं नेक्स्ट मंथ तक मेरी प्लानिंग वगैरह सब हो गई है। यहाँ पे अबाउट टू कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अबाउट टू का मतलब भी होता है बस अभी सेकेंड्स में हो जाना, जैसे मैं बस साइन करने ही वाली हूँ, है ना। आई एम अबाउट टू साइन डू माई कार्ड्स पेपर्स, राइट। अब ये इसका मतलब है कार तो मैंने खरीद ली है, बस साइन होने वाले हैं, लाइक दैट। तो ये अबाउट टू इज जस्ट हैपनिंग है, फ्यूचर के बारे में ही, और ये जो गोइंग टू है इसकी प्लानिंग वगैरह हो गई है, मैं करने वाली हूँ, सब कुछ फिक्स है, फ्यूचर से ज्यादा फिक्स ये है, लेकिन अभी 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 नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं करने वाली हूँ ऐसा, ठीक है। आपको याद हो तो हमने अभी कुछ दिन पहले एक सेंटेंस बोला था कि मैं ना मुंबई शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब मेरा पूरी प्लानिंग हो गई है और मैं अब तो कर रही हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा समय लेके करने वाले हैं शिफ्ट तो फिर बोलेंगे आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू मुंबई इन सम टाइम, तब वो आप प्लानिंग लगाएंगे। लेकिन आप बस कल ही जा रहे हैं, अरे मैं शिफ्ट ही करने वाली हूँ, कल ही करने वाली हूँ, इसका मतलब आपने समय ही नहीं है, आप लोग अभी अभी करने वाले हैं, तब वहां पे अबाउट टू लगाते हैं। इसका हम पास्ट भी बना सकते हैं, जो कि फ्यूचर का जनरली हम पास्ट भी बना सकते हैं।
तो ये जो फ्यूचर है ना, जिसमें बिना विल और शैल के फ्यूचर लगता है, फ्यूचर सुनाई देता है, वो उसका हम पास्ट भी बना सकते हैं। अगर आप कोई काम करने ही वाले थे या करने वाले थे, ठीक है, तो आप इसी का पास्ट भी बना सकते हैं। वो पास्ट आप वॉज और वर के साथ बना सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रेजेंट है ना, वही फ्यूचर शो करता है, फ्यूचर अलग से नहीं बनेगा। आप जब सेंटेंस बनाओगे ना, जैसे मैं मार्केट जाने ही वाली हूँ, तो तुम बता दो तुम क्या लाना है, मतलब मैं अभी जा रही हूँ, बस निकल ही रही हूँ, ऐसा है। मैं मार्केट जाने वाली हूँ, तुम मुझे लिस्ट दे दो, मैं ले आऊंगी। इसका मतलब है अभी नहीं जा रही हूँ, लेकिन जाऊंगी, मैंने प्लानिंग कर ली है मार्केट जाने की। तो ये दोनों का डिफरेंस है लेकिन फ्यूचर के बारे में। इज एम आर, अबाउट टू एंड गोइंग टू बेसिकली फ्यूचर बताने वाले मॉडल वर्ब्स भी हैं। फ्यूचर बताने वाले मॉडल्स ही हैं जिनमें विल और शैल नहीं लगता ही नहीं है। विल बी गोइंग टू और विल अबाउट टू होता ही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इसका पास्ट भी बन सकता है, इसका प्रेजेंट जो फ्यूचर बताता है वही बनता है, इसका फ्यूचर कुछ नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इन चीजों से आप जब सेंटेंसेस बनाते हो तो आप फ्यूचर में वैरायटी लाते हैं। विल और शैल से बोर हो जाते हैं हम लोग, तो बीच बीच में गोइंग टू भी कहते हैं हम लोग बात करते करते, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप कोई चीज बस करने ही वाले हैं, है ना, तो आप गोइंग अबाउट टू का भी यूज वहां पे बीच में लगा देते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मैंने अपने रेजोल्यूशंस आपको बताने हैं, माय रेजोल्यूशंस, है ना, जो कुछ भी मैंने सोचा है कि या दिस इज द नेक्स्ट, द ईयर हैज स्टार्टेड एंड मैं अपने रेजोल्यूशंस, इसको हिंदी में संकल्प कहते हैं जिनको नहीं पता हो, है ना, कुछ भी जो हमने डिसाइड किया है दैट या आई एम गोइंग टू डू दैट। तो माय रेजोल्यूशंस आर, फर्स्ट I will, now first thing which I have decided, that is I will not procrastinate the things. Procrastinate का मतलब ही होता है that you know when I delay something, so I will not do that, that I have decided. I'm going to continue my morning walk, which I used to do, but now I don't do. So yeah, I think I have thought that I am going to continue. मतलब मैं करूंगी ऐसा, है ना, मतलब मैं करने वाली हूँ। कब से करूंगी, that I have not decided. Recently नहीं, लेकिन मैंने कर लिया है डिसाइड कि मैं करने वाली हूँ, ठीक है। One more, you know, planning what we have done is I'm about to make a proper timetable for, or I would say proper routine for my eating. You know, in the morning I don't take much breakfast. I even don't take it. I directly take lunch after 11 o'clock. But now I have decided to have some different things. So I'm about to make a proper routine for my eating. मतलब मैंने शुरू करने ही वाली हूँ, मतलब कल से हो जाएगी शायद, अगर ये चीज कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैं आपको सेंटेंसेस मैंने थोड़े से जानबूझ के इस तरह से बनाए हैं कि आप तीनों यूज कर पाए। बट तीनों चीजों के बारे में अगर मैं देखूं तो एवरीथिंग इज गिविंग अ डिफरेंट मीनिंग। वन इज होगा, वन इज होने वाला है, वन इज बस होने ही वाला है। लेकिन एज अ स्पीकर आप उसे सेट कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग में, एज यू आर स्पीकिंग द सेंटेंसेस, right? So future simple is not only about will and shall, it is also about I am about to and going to. But थोड़ा सा सेंटेंस में आप ध्यान रखेंगे, ये जो going to होता है ना, इसका आपको बता दूं तो इसका एक सिनोनिम भी होता है, that is called planning to, और बहुत क्लियर होता है, हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू माय मॉर्निंग वॉक, दैट मींस इट इज इन द प्लानिंग, इट इज इन द पाइपलाइन, राइट?
बहुत अच्छा फ्रेज है, बहुत अच्छा ईडियम है। जब कोई चीज है ना अंडर वर्क है, कंस्ट्रक्शन है, या इन द पाइपलाइन है, लाइक द work is in the pipeline, that means the work is continuing and going to finish. Yes, the work is in the pipeline, है ना? So that means work is going on and बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, like that. तो ये अच्छा idiom है, बहुत अच्छा idiom है. If you say like, have you completed your engineering? No, it's in the pipeline. That means it is going on and very soon it will finish, like this. तो ये अच्छा ईडियम भी है यहाँ पर, है ना? तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा फ्यूचर सिंपल, दैट इज द सेम, है ना? नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और एल्स इफ यू फील लाइक आस्किंग एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, प्लीज डू टेल मी. पूछ सकते हैं आप लोग मेरे मुझसे. आपके पास में 5 मिनट्स हैं. उसके बाद फिर हम आप लोगों के रेजोल्यूशंस में सुनना चाहती. आप लोग मुझे अपने मेजर रेजोल्यूशंस जरूर बताएं. मेजर रेजोल्यूशंस वो होते हैं जिसका मतलब है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस जो हम करने ही है हमको. बड़े बड़े जो हमारे फैसले होते हैं, संकल्प होते हैं. मुझे आप अपना वो बड़ा संकल्प बताएं, या ज्यादा है, 1 या 2 है तो वो बताएं, लेकिन बताएं जरूर. ठीक है? Any question? Please tell me if there is any question. Future se related, is there any question? Please tell me. Unmute yourself before speaking if you are speaking something. ओके, ठीक है. तो फिर एक काम करते हैं कि आप लोग अपने रेजोल्यूशंस मुझे बताएं. मैं आप लोगों को 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ. 3 मिनट में मैं क्लास दोबारा शुरू कर रही हूँ, और आप मुझे अपने संकल्प, whatever you decided for yourself, please do tell me. क्लास को आप ज्वाइन करें, सोच लीजिए, है ना? 3 मिनट का टाइम है, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है? सो प्लीज ज्वाइन द क्लास वंस अगेन and tell me your resolutions, right? You can think and tell me.